Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today this one is very important concept, that is sandwich theorem, very popular theorem. This is about sequence, right? See, this theorem states that let un, vn and wn be three sequences of real numbers okay, three sequences of real numbers. There is a natural number m such that there is a natural number say m such that क्या होगा ना un less than vn less than equal to wn for all n greater or equal to m. If limit n tends to infinity un equal to limit n tends to infinity wn equal to l, then that vn sequence converges to convergent होगा, is convergent and it converges to L. Limit means converges means क्या, limit क्या होगा, सॉरी vn का लिमिट क्या होगा L. दिस इज द स्टेटमेंट. मतलब क्या, इसको मैं फिर से रिपीट करूं तो तीन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है, कि वो यहाँ पे एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, उनके बाद में से हर एक टर्म किसको सेटिस्फाई करेगा, दिस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है. आफ्टर सम नेचुरल नंबर m, उसके बाद में से हर एक टर्म सेटिस्फाई करेगा. इफ un का लिमिट एंड wn का लिमिट l हो जाए देन vn कन्वर्ज करेगा. मतलब बोथ साइड देखो, un इस साइड में है, wn राइट साइड में है. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो सीक्वेंस का nth टर्म है वो उसका लिमिट l है, तो मिडिल वाला जो सीक्वेंस है उनका लिमिट भी l होगा. मतलब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट क्योंकि लिमिट यूनिक है. गॉट इट? दैट्स द स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट हर जगह पे यूज होता है. दैट्स द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नाउ I provide you some small proof. See, proof is very basic. So, main concept is this. Okay. Now, proof. See. अच्छा, proof. अच्छा, proof को मैं रेड कलर से करता हूं. proof. अच्छा, proof क्या बोल रहा है ना, obviously by definition हम लोग चलेंगे कि let epsilon greater than 0. So, by definition क्योंकि since limit n tends to infinity un equal to l, by definition of limit there exists k1 natural number such that un minus l mod less than epsilon for all n greater or equal to k1. Also limit n tends to infinity wn equal to l, that implies by definition there exists k2 natural number such that un sorry ये u नहीं ये w है minus l mod less than epsilon for all n greater or equal to k2. Got it? That's the scenario. ठीक है. Now हम ये तो बोल सकते हैं ना कि लेट K3 जो कि मैक्सिमम ऑफ K1 K2, ध्यान से देखना. अच्छा,
इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं। देयरफॉर 1 एंड 2 इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा? 1 एंड 2 इंप्लाई करेगा कि un minus l mod less than epsilon for all n greater or equal to k3, that is basically l minus epsilon less than un less than l plus epsilon for all n greater or equal to k3. Similarly, and l minus epsilon less than wn less than l plus epsilon for all n greater or equal to k3. Got it? ये दोनों है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं कि वहां पे जो m था ना कि n greater or equal to m क्या सेटिस्फाई कर जाएगा? vn लेस सॉरी un लेस देन vn लेस देन wn, ये तो था। इसको मैं थर्ड नंबर दिया हूं और क्या है, इसको मैं थर्ड नंबर दिया हूं, ठीक है। देयरफॉर लेट k इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ k3 एंड m, ये ले लिया हूं। देयरफॉर क्या होगा? l माइनस एप्सिलॉन लेस देन un लेस देन vn लेस देन wn, ये क्या था? इक्वल टू था wn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू k। गॉट इट? k सबसे मैक्सिमम, m से भी ज्यादा, k1 से भी ज्यादा, k2 से भी ज्यादा, k3 से ज्यादा, राइट? ओवरऑल गॉट इट? दैट्स द सिनेरियो। यहां से हम बोल सकते हैं ये इंप्लाइज l minus epsilon less than vn less than l plus epsilon for all n greater or equal to k. That implies vn minus l less than epsilon for all n greater or equal to k. Therefore, by definition क्या है? By definition, as for epsilon greater than 0 there exists some k natural number such that vn minus l less than epsilon for all n greater or equal to k. Therefore limit n tends to infinity vn equal to l. That's the scenario ना. So we are done, right? कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया, मतलब सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है एंड कॉन्वर्ज कहां पे कर रहा है? जहां पे उनका लिमिट है, तो एल पे इट इज कॉन्वर्जेंट। गॉट इट? ओके, दैट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। ओके, सी दैट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। नाउ सैंडविच थ्योरम का कुछ एग्जाम्पल चाहिए होगा, तो उसका एग्जाम्पल को कैसे डिस्कस किया जाए? सी फिर से देखो, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट इसको अप्लाई करके मैं एक एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगा तो आपका पूरा का पूरा जितना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, राइट? तो इसको यूज करके एक एग्जाम्पल मैं चूज कर लेता हूं। जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल कोई भी एक रैंडम उठाऊंगा तो हो जाएगा। तो हाँ, ठीक है, चूज वन एग्जाम्पल। सी हम लोग ऐसे चूज कर सकते हैं कि आप ऐसा उठाओ। अच्छा, मैं तो इजी वाला भी ले सकता हूं, जैसे कि आप ये बताओ कि प्रूव करना पड़ेगा क्या? लिमिट टी स्क्वायर साइन 1/t का जो वैल्यू है वो 0 है। कब? जब t 0 पे जा रहा है, ये प्रूव करना है। सपोज मानो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इजी वाला एक सोचा हूं, तो इसको प्रूव करने के लिए ना हम लोग सैंडविच यूज कर देंगे। कैसे करेंगे? क्यों यूज कर रहा है? देखो, हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा इसका वैल्यू क्या होता है? इसका मॉड्यूलस वैल्यू ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब -1 लेस और इक्वल टू साइन 1/t लेस और इक्वल टू 1। यहां से
आप बोल सकते हो माइनस टी स्क्वायर लेस और इक्वल टू टी स्क्वायर साइन 1/t लेस और इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हो गया। नाउ ये देखो लिमिट t टेंड्स टू 0 माइनस टी स्क्वायर, ये जो लेफ्ट साइड में है इसका वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा लिमिट t टेंड्स टू 0, ये जो टी स्क्वायर है ये भी 0 पे जा रहा है, मतलब राइट हैंड साइड में है, दोनों 0 पे जा रहा है। तो ऑब्वियसली देयरफॉर बाय सैंडविच हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0, जो मिडिल वाला सीक्वेंस है मतलब टर्म है वो भी 0 पे जाएगा। सो वी आर डन बेसिकली, राइट, वी आर बेसिकली डन। सो दिस, ऐसे हम लोग सैंडविच थ्योरम को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सो वी आर बेसिकली डन। सो इससे भी अच्छा वाला एग्जाम्पल चाहिए, मैं मतलब क्या बोलूं, मेरे पास एक एग्जाम्पल था बट आई थिंक कहाँ पे मिसिंग है। ओके, लेट मी ट्राई। सी वन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इज देयर, तो आपको जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो मैं बोल रहा हूं फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n² + 1, दिस इज द प्रॉपर जस्ट मतलब यूज ऑफ सैंडविच थ्योरम। इसको अच्छे से देखो, n² + n, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, इसका नाम दे देता हूं वही वाला कि Vn, इसका नाम, ठीक है। नाउ देखो ये 1/n² + n, ये जो टर्म है 1/n² + m, ये जो टर्म है ये क्या है ना, ये n² + 1 फर्स्ट टर्म, that is less than or equal to √n² + 1। अच्छा 1/√n² + 2 नीचे ज्यादा है तो इससे ऑब्वियसली ये वाला लार्ज होगा ना, गॉट इट। तो ऐसे ऐसे करते प्रोसीड करते जाओगे तो नीचे जो n² + n होगा ना वो भी इनसे छोटा होगा, गॉट माई पॉइंट। ये सबको ऐड कर दो, एडिंग क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में Vn मिल जाएगा, लेस देन ये कितना टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा, तो बेसिकली n/√n² + n, ये हो गया, सॉरी n² + 1, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अच्छा ऐसा हुआ। नाउ आप इसको ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। नाउ क्या है ना, √n² + 1 ये ग्रेटर देन √n² + n, ये तो होगा। 1/√n² + 2 करोगे वो भी ग्रेटर देन n² + n होगा। ऐसे ऐसे करते जाओगे एंड तक, कहां तक, √n² + n कहां तक जाएगा, √n² + n। इसको भी ऐड करो, एडिंग क्या मिलेगा बताओ, एडिंग लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है, Vn ग्रेटर और इक्वल टू n/√n² + n। तो इसका नाम मैं 1 दे दिया, इसका नाम मैं 2 दे दिया, गॉट इट। सो यूजिंग 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं ना, n/n² + n लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन यू कैन स्ट्रिक्टली लेस देन Vn लेस देन n/√n² + 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ऐसा ले लिया तो काम चल जाएगा स्ट्रिक्टली। नाउ देखो इसका लिमिट देखो, लिमिट इसका नाम मैं दे देता हूं un अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसका नाम दे देता हूं wn, ठीक है। नाउ देखो कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un का वैल्यू क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऊपर नीचे n से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 1 + 1/n, इसका वैल्यू 1 है। अच्छा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी wn का वैल्यू क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/√1 + 1/n²,
जो कि बेसिकली 1 होगा, 1/√1 + 0 बेसिकली 1 होगा। देखो बोथ साइड में un जो है ये 1 पे जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो wn है ये भी 1 पे जा रहा है। देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वो क्या है, vn, मतलब जो रिक्वायर्ड लिमिट है उसका वैल्यू 1 होगा आंसर। दैट्स द बेस्ट यूज ऑफ सैंडविच थ्योरम। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। इफ यू रियली लाइक दिस video, please share and subscribe this video. Thank you.